आज हम सूरत आए हैं शो पर और एक दुखद समाचार मिला कि भप्पी दा नहीं रहे। भप्पी दा की मेरी सबसे पहली मुलाकात 1991 में हुई थी, जब मुझे एक फ़ोन आया था कि भप्पी दा एक प्रोग्राम कर रहे हैं शिवाजी पार्क में मुंबई में, और उनको एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो मराठी में गा सके। तो मैं उनके घर पहुंच गया जुहू। उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया और पूछा कि मैं क्या गाऊंगा। मैंने कहा कि मैं किशोर दा का गाया हुआ मराठी गाना जो अनिल अरुण साहब ने कंपोज़ किया था वो गाना चाहता हूँ। तो 2 लाइनें उन्होंने सुनी और कहा कि बहुत अच्छे, तुम मेरे प्रोग्राम में गा रहे हो, कल आ जाना। कल अगले दिन मैं शिवाजी पार्क पहुँच गया। 1 लाख लोग ऑडियंस में थे, दादा स्टेज पर थे और 50 म्यूज़िशियन बजा रहे थे साथ में। तो ये मेरा पहला मौका था दादा के साथ काम करने का। उसके बाद कई बार दादा से मुलाकात हुई, आशीर्वाद मिला। दादा के म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत ही छोटा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन क्या कमाल गाने एक से एक दादा ने दिए हैं। कौन भूल सकता है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ऐसे ही कई अनगिनत मेलोडियस गाने दादा ने दिए हैं। 1980s में एक नया दौर डिस्को का दादा ले आए और बिल्कुल ये उनकी छाप बन गई। डिस्को किंग उनको कहा जाने लगा। तो दादा के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब इतने सारे मेमोरीज़ और गाने जहन में आते हैं। लेकिन कुछ साल पहले एक बात हुई थी कि हम लोग बंगाली एसोसिएशन का प्रोग्राम कर रहे थे यूएसए में, न्यू जर्सी में, और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि दादा का एक बंगाली गाना आप अगर पेश कर सकें। तो मैं बिल्कुल बंगाली नहीं बोलता और मुझे बहुत डर लग रहा था बंगाली में कैसे गाऊं, वो भी बंगाली ऑडियंस के सामने। लेकिन कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस की और बंगाली दोस्तों से सलाह मशवरा किया, उनको गा के सुनाया और ये गाना मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था। मुझे पूरा गाना याद नहीं है, लेकिन दादा की याद में मैं 2 लाइनें इस गाने की सुना देता हूँ। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। লা 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 লা। সঙ্গী সঙ্গী লা লা আমার সঙ্গী। भप्पी दा अमर रहे। It's a very, very shocking news. I'm shocked beyond words. For me, he was my childhood friend. We knew each other since we were toddlers. We were neighbors in Khar, Mumbai, a suburb in Mumbai. So I know Bappi as a child, as a toddler, and I've seen him growing as a music director, and he got a break, an early break, when he was just in his teens. Then he never looked back, and he just, worked tirelessly for the last 50 years. This man was never out of job, and he did countless movies with chartbusters, and he was the person who had introduced disco music to the Indian audience. So he has a very big contribution, and apart from that, he was a very good popular singer also, like few of his songs like Tumhara Pyar Chahiye, Mujhe Jeene Ke Liye, and दिल में हो तुम, आंखों में हो तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहें. So
he was an innocent, harmless person at heart. Success had never gone into his head. And he was just in love with his music, with his songs. And we were in touch with each other, whether it was a function at his house, a wedding. He never forgot to call me, and he used to call me Razada. And we had done 2 shows together. One was in Dubai and another was in Muscat, Oman. So he did countless films, and apart from that, some of his songs became very, very popular, like चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना. बप्पी दा, आपके गीत तो याद है, लेकिन आप खुद अलविदा कह के चले गए. ये हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे. We did a song that had been, I think, remixed, and it's a really tough. It's been a tough month actually. We lost Lata Mangeshkar ji, then the Bengali singer who died yesterday. She was also a legend. And today last night Deep Sidhu died in a car accident. So it's quite traumatic. But for Bappi Lahiri, I feel like his music will live on. He truly made some really good international tracks. He was I think the first guy to sue somebody abroad when they used his tune for that remixed version of, I don't remember what, I think Truth Hurts or something. And he won the case. So my deepest condolences to his family, and he will always be alive through his music. बहुत प्यारे इंसान थे, दिल के भी गुड हार्टेड थे, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में. उनका अच्छा योगदान रहा है, और मुझे स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए. तकरीबन मैंने 60 सॉन्ग्स उनके साथ गाए, उनके बप्पी दा की म्यूज़िक में, और अच्छे अच्छे पॉपुलर गाने हैं. गोरी हैं कलाइयाँ, तुरा दे मुझे हरी, साजन आजा रे, बंधन टूटे ना. बहुत प्यारे मुझे नगमे दिए और बहुत चाहते थे. अभी अभी एक दुखद समाचार मिला कि हमारे प्यारे बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे. एक कलाकार कभी मरता नहीं. अपनी कला के द्वारा वो लोगों के हृदय में हमेशा जीवित रहता है. मुझे बप्पी दा को मिलने का सौभाग्य मिला 2009 में, जब मैंने सारेगामा मेगा चैलेंज में गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट किया था. बड़ी ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी थे बप्पी दा. अनगिनत सुरीले गाने दिए हैं बप्पी दा ने हम लोगों को. तो बप्पी दा की याद में चंद लाइनें उन्हीं के एक खूबसूरत गाने की मैं गुनगुनाना चाहती हूँ. बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Bappi da, we love you, we miss you. May your soul rest in peace.